أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. محترم حضرات، اللہ رب الجلال میرا اور آپ کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہماری اور آپ کی ہر طرح کی تعریف اور توصیف کے ساتھ ساتھ ہم سب کے شکر کا اور ہم سب کے اعتراف نعمت کا مستحق ہے کہ جس نے آج یہ موقع عطا فرمایا کہ نماز مغرب کے بعد ایک مختصر سی ملاقات میں کچھ ضروری باتیں ہم سننے سنانے کا اہتمام کریں، جن باتوں سے میری اور آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو، ہمارے اور آپ کے اعمال میں ترقی ہو، اور جو باتیں مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بندہ، اس کا چہیتا بندہ بننے میں مدد دے سکیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ سورہ مؤمنون کی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، دو آیتیں ہیں، ان میں سے جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی ایک بڑی خاص صفت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، کہ ایمان والے نیکیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھنے والے اور اس میں مسابقہ اور مقابلہ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ ہم بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں ہم اور آپ کو پیڑ لگانے ہیں، پھل یہاں ملے تو ملے، لیکن آخرت میں یقیناً ملے گا، لیکن یہاں ہمیں بہرحال پیڑ لگاتے جانا ہے، عمل کرتے جانا ہے، کوشش کرتے جانا ہے۔ دیکھیے، ایک بڑی اہم بات اسلامی شریعت میں نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ کو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ عمل کرنے کے سلسلے میں بڑی باریک باریک ہدایات اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو دی گئی۔ یعنی عمل کرنے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہے۔ ہم عام طور پر ایک جنرل اسٹیٹمنٹ، ایک جنرل تبصرہ، ایک عام بات، ایک عام پیغام سنتے ہیں، بندے کو عمل کرنا چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ان نیکیوں کے کرنے کی بھی اپنی ایک فقہ ہے، ایک سمجھ ہے، ان کی اپنی بھی ایک تفصیل ہے۔ اللہ نے باریکیاں بڑی اس کے اندر رکھی۔ سب کو نیکیاں کرنی ہیں اور ہر طرح کی نیکی مجھ کو اور آپ کو کرنی ہے۔ عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں۔ تقسیم میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، فرائض ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، اور بدنی عبادتوں میں بھی اگر آپ کہنا چاہیں قولی عبادتیں ہیں،
इंसान के आज़ा व जवारे से होने वाली इबादतें, अमाल बहुत सारे हैं। इन तमाम से मुताल्लिक इस्लामी शरीयत में बड़ी दकीक फ़िक़्ह यानी बड़ी बारीक सी बातें और बड़ी तफसीलात इस्लामी शरीयत ने हम और आपको सिखाई हैं। और उन्हीं की रोशनी में आज एक बड़ी ही अहम बात मुझे आप हजरात के सामने रखनी है, और वो बात ये है, देखिए इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने एक तरह से यूं समझिए सरमाया, हमें जो जिंदगी इस दुनिया में दी है उसे एक सरमाए के तौर पे दी है। ये कैपिटल है हमारा, ये जो जिंदगी के सुबह शाम है ये हमारा कैपिटल है। हमें इन्वेस्ट करना है, हमें इस पैसे को लगाना है या इस जिंदगी को लगाना है इस तरह के हम ज्यादा से ज्यादा कमा सकें, बेहतर से बेहतर कमा सकें। अब आप जानते हैं मार्केट में भी ये होता है, हम सब देखते हैं कि एक ही किस्म का सरमाया आप 10 लोगों को देंगे, 10 लोग शाम में जब उस सरमाए को लगा के वापस लौटेंगे, सबकी कमाई बराबर नहीं होती, सब लोग बराबर नहीं कमाते। कोई ऐसा रहता है कि जितना लगाया उसका दुगना कमा के लाता है, कोई ऐसा है कि 1 गुना कमाता है, कोई एक ऐसा होता है बराए नाम फायदे में रहता है, और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं कि सरमाया डुबो कर भी वापस आते हैं। मार्केट में ये सब हम देखते रहते हैं। आप यकीन कीजिए कि अमल की दुनिया में भी यही सब कुछ होता है। ये जिंदगी का जो सरमाया अल्लाह ताला ने हम और आपको दिया है, हम सब लगा रहे हैं बाजार में। ये दुनिया एक बाजार है, इस बाजार में हम सब लगा रहे हैं, लेकिन इससे भरपूर फायदा उठाने के लिए इस्लामी शरीयत ने वो जो बारीकियां सिखाई हैं उनकी जानकारी जरूरत है। जैसे मार्केट में कोई भी आदमी पैसा लेके उतर जाए, कमा लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, उसे मार्केट का पता होना चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है मार्केट में आदमी दाखिल होता है, उसे मार्केट का पता है, सरमाया नहीं भी हो तो पैसा बना के मार्केट से बाहर निकलता है। और कई बार ऐसा होता है कि आदमी को मार्केट का पता नहीं है, सारा सरमाया लेकर भी वो नुकसान ही में रहता है। ये दुनिया में हम देखते हैं। अमल की दुनिया में भी ये मसला याद रखिएगा कि इस्लामी शरीयत ने हम और आपको सिखाया है कि ये जो जिंदगी है इसे बरतने का एक सलीका आना चाहिए। इसमें 2 बड़ी बातों का हम और आपको ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको और हमको जब ऑप्शन रहे 2 में से एक काम हमको करना है, हमेशा इसका ख्याल रखिए कि ज्यादा अजर वाली नेकी, ज्यादा फायदे वाली नेकी, ज्यादा फजीलत वाली नेकी, ज्यादा बड़ी नेकी करने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बुनियादी बात मैंने कहा ना, फिर हसनात या नेकियां करने की भी अपनी एक फिक्र है। सबसे पहले यह होना चाहिए कि आदमी ये देखे भाई वक्त लग ही रहा है, मैं ये वक्त वहां लगाऊंगा जहां मेरा अजर ज्यादा हो सकता है। 2 भी नेकी के काम, 2 भी नेकी के काम हैं, लेकिन 2 नेकियों में से मैं वो नेकी ज्यादा करूंगा या उसको तरजीह दूंगा जहां मुझे अजर ज्यादा मिल सकता है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि से किसी ने पूछा कि एक आदमी नफिल इबादत करे, यह ज्यादा अफजल है या फिर यह कि इल्म हासिल करने में अपनी जिंदगी लगाए, यह ज्यादा अफजल है? दोनों नेकी हैं, नफिल नमाजें पढ़ना, नफिल इबादतें करना नेकी है, और इल्म हासिल करना, इल्म को फैलाना, यह भी बड़ी नेकी है। इन दोनों नेकियों में से एक बंदे को अगर ऑप्शन हो, इख्तियार हो, तो ज्यादा किसको प्रेफर करे, तरजीह दे? तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि ने जवाब दिया, आदमी को इल्म हासिल करने पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए अगर 2 में से एक के इख्तियार की बात हो। कहा क्यों? इसलिए कि अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज नेकी है, लेकिन इस नेकी का फायदा खुद आदमी तक महदूद रहेगा। ये आदमी की नेकी आदमी की हद तक रहेगी, लेकिन वही इल्म हासिल करके इल्म फैलाएगा तो खुद भी नेकी कमाएगा, दूसरों का भी भला करेगा। तो वो नेकी जो मुतअद्दी है, यानी जिसका असर दूसरों तक पहुंच रहा है, वो नेकी जो दूसरों तक पहुंच रही वो ज्यादा अफजल है उस नेकी के मुकाबले में जो नेकी आपकी हद तक रहती है, जो फैलती नहीं, जिसकी पहुंच ज्यादा दूर तक नहीं है। तो जिंदगी में एक सबक ये सीखिए कि जब कभी 2 नेकियों के में टकराव होता है ना, तो ज्यादा फजीलत वाले अमल को हमेशा मुकद्दम रखिए जब दोनों में से एक करने की बात हो। और पहली बात उससे पहले तो ये कि आदमी हमेशा कोशिश करे दोनों में जमा करने की, वो भी कर लूं ये भी कर लूं, अगर मुमकिन हो तो मैं दोनों नेकियां कर लूंगा, एक करके एक छोड़ने वाली बेवकूफी नहीं करूंगा, दोनों नेकी करूंगा। लेकिन अगर इख्तियार की बात, ऑप्शन की बात,
ایک ہی کر سکتا ہوں, یہ کروں گا تو وہ چھوٹے گی, وہ کروں گا تو یہ چھوٹے گی, تو پھر ایسی نیکی بندے کو کرنی چاہیے جو نیکی زیادہ بڑی نیکی ہے, یہ ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جو آتے تھے نا, صحابہ کے اندر یہ فقہ تھی. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق لینے کی بات کرتے ہیں, سلفیت جسے کہتے ہیں, مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے, یہ قرآن و سنت کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق لینے کی بات ہے. وہ وجہ اس کی یہ ہے, دیکھیے صحابہ کے اندر یہ فقہ تھی, یہ سمجھ تھی. اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتے تھے ای الاسلام خیر, اے اللہ کے نبی اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ ای الاعمال افضل, اے اللہ کے نبی اعمال میں زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صحابہ کو مختلف حالات کے اعتبار سے جواب دیتے جاتے, لیکن صحابہ کی طرف سے یہ سوال کیا جانا, یہ ان کی فقہ, یہ فقہ الحسنات, نیکیوں کی جو سمجھ ہے, نیکی کرنے کی جو اپنی ایک فقہ ہے, ایک احکام ہے, ان کی سمجھ صحابہ کو یہ بھی پتا چلتا ہے. اور وہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ نے جب یہ پوچھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ یہ سب مجھ مت پوچھا کرو, جو نیکی آتی ہے کرتے چلے جاؤ, یہ مت دیکھو کہ زیادہ فضیلت والی کون سی ہے. یہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے نہیں کہا, بلکہ صحابہ کے اس سوال کو اللہ کے نبی نے برقرار رکھا, اور برقرار رکھتے ہوئے ان کے سوالات کے جواب اللہ کے نبی دیتے گئے. تو آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب کبھی میرے سامنے آپشن ہو, میں سب نیکیاں کروں, لیکن جب دو میں سے کسی ایک ہی کے کرنے کی بات ہے تو پھر میں وہ نیکی کروں گا جو نیکی زیادہ افضل ہے, زیادہ فضیلت والی ہے, زیادہ اہم ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. ایسی نیکی میں کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان میں, اغاثۃ اللہفان عن مصائد الشیطان, اس کتاب میں پوری کتاب اس موضوع پر ہے کہ شیطان انسان کو کیسے شکار کرتا ہے, کیسے انسان کو بندگی کے راستے سے ہٹاتا ہے. بڑی تفصیل انہوں نے ذکر کی ہے. میں بات صرف آخری اس کا ایک حصہ آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. ابن قیم نے لکھا ہے کہ جب بندے کو فرائض سے غافل نہیں کر سکتا, سنتوں سے غافل نہیں کرتا, سب سے پہلے کفر میں مبتلا نہیں کر سکتا, بدعتوں میں مبتلا نہیں کر سکتا, گناہ کبیرہ میں مبتلا نہیں کر سکتا, فرائض سے غافل نہیں کر سکتا, سنتوں سے بھی غافل نہیں کرتا, تو شیطان کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ کہ آخری درجہ یہ ہے کہ دو کام فضیلت والے دو کاموں میں سے زیادہ اہم کام کی طرف سے پھیر کر کم اہمیت والے کام میں مشغول کر دیتا ہے. شیطان کا یہ بھی ایک حربہ ہے. ایک طرف ایمان والوں کا یہ طریقہ کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو انویسٹمنٹ زیادہ فائدے والی نیکی میں کریں, زیادہ بڑی نیکی میں کریں. دوسری طرف شیطان کا یہ حربہ, شیطان کی یہ کوشش, شیطان کا یہ طریقہ کہ دو نیکیوں میں سے بندے کو کسی بھی طرح بڑی نیکی سے ہٹا کے چھوٹی نیکی میں لگا دے, زیادہ اہم کام سے ہٹا کر کم اہمیت والے کام میں لگا دے. یہ شیطان کا طریقہ ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور آپ کو بتاؤں, ہم اگر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں, اللہ معاف فرمائے, کئی بار ہم اس قسم کے دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. غفلت کہاں ہوتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیکار تو نہیں ہوں, گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں, نیکی کے کام میں وقت گزر رہا ہے, اچھا کام ہی کر رہا ہوں, لیکن یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اسی اچھے کام کی جگہ اس سے زیادہ اچھا کام میں کر سکتا تھا, اس سے زیادہ فضیلت والا کام کر سکتا تھا, اس سے بڑی نیکی بھی میں کر سکتا تھا. یہ انسان اکثر سوچ نہیں پاتا. تو پہلی بات آج کی اس ملاقات کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نیکیوں کی فقہ میں یہ فقہ ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہم جتنا بھی یہاں رہ کر عمل کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں کہ اپنی زندگی کا انویسٹمنٹ زیادہ بڑی سے بڑی نیکی, تادیر رہنے والی نیکی, صدقہ جاریہ کے درجے کی نیکی, وہ نیکی جو اللہ کے پاس زیادہ مقام رکھتی ہو, جو فضیلت رکھتی ہو, ایسی نیکیوں میں اپنا وقت لگانے کی کوشش کریں. یہی اصل میں ایک سمجھدار مومن کی, ایک عقل مند مسلمان کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. اور دوسری بات جو اسی سے متعلق آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا, دیکھیے یہ جو نیکیوں کا میدان ہے نا, یہ بڑا جو ہے اس کے کئی رخ آتے ہیں. اس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے
कि शैतान इंसान को कई बार बड़ी बड़ी नेकियां दिखाकर छोटी नेकियों से गाफिल कर देता है। बड़ी बड़ी नेकियां बताकर छोटी नेकियों की तरफ से बंदे को गाफिल कर देता है। मैं जो अब तक बात कर रहा था वो ये कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसमें दो काम में से एक ही काम हो सकता है। यहां तो आपको यकीनन बड़ी नेकी को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन बड़ी नेकी के बाद, बड़ी नेकी के साथ छोटी छोटी नेकियां करने का मौका अगर मिल रहा है, इन छोटी छोटी नेकियों को मामूली नहीं समझना चाहिए, खूब नेकियां करना चाहिए। शैतान यहां भी इंसान को धोखे में डाल देता है कि भाई तुम्हारे पास तो इतने बड़े बड़े आमाल हैं, इतनी बड़ी नेकियां हैं, तो ये छोटी नेकियों से क्या फर्क पड़ने वाला है। आप हर साल हज पे जाते हैं, हर साल उमरा करते हैं, आप मस्जिद बनाते हैं या मस्जिदें बनाने में हिस्सा लेते हैं, आप आलिम हैं, आप इमाम हैं, या आप जो है खिदमत खल्क के फला काम में लगे रहते हैं, इतने बड़े बड़े काम आपकी तरफ से हैं, ये छोटी छोटी नेकियों की तरफ क्यों तवज्जो दे रहे हैं? ये शैतान का एक और हरबा है। हसनात या नेकियों की फिक्र या अमल करने के जो इस्लामी आदाब हैं, इस्लामी शरीयत ने जो सिखाए वो ये भी हैं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़े आमाल भी हो तब भी छोटी नेकी को भी छोटी ना समझो, मामूली नेकी को भी मामूली मत समझो। वो बड़ी नेकी के मुकाबले में छोटी है, वो बड़ी नेकी के मुकाबले में मामूली है, लेकिन मेरी और आपकी आखिरत के लिए वो भी जरूरी है, उसकी भी अपनी अहमियत है, उसका भी अपना मुकाम है। लिहाजा किसी छोटी नेकी को छोटा न समझो, किसी नेकी को मामूली मत समझो, चाहे वो कितनी ही छोटी मानी जाती हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ऐसी ही तरबियत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करते हुए कहा था ना कि ला तहक़िरन्न मिनल मअरूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़िन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी नेकी को हकीर मत समझो, किसी भी नेकी को मामूली मत समझो, चाहे ये नेकी अपने भाई से मुलाकात करते हुए मुस्कुराकर मिलना ही क्यों ना हो। भाई दुनिया है, मिल मिलाप तो रहेगा। मैं घर से बाहर निकलूंगा, रास्ते में लोग मिलेंगे, मस्जिद आऊंगा, बीसियों लोगों से मुलाकातें होंगी, दुकान में अपनी जरूरतें खरीदने जाऊंगा तो भी सामना होगा, कारोबार करने दुनिया में निकलूंगा, लोगों से मिलना होगा, मिल मिलाप अपना होगा, लोगों से मिल जोल हमारा रहेगा। जब मिलना ही ठहरा, मिलना तय है, तो मिलते हुए मुस्कुराकर मिल लो, मिलते हुए अच्छे अंदाज में मुलाकात कर लो। इस मुलाकात के वक्त मुस्कुराने में आपकी एनर्जी से ज्यादा कुछ वेस्ट नहीं होती, आपका बहुत ज्यादा कोई वक्त नहीं लगता, बहुत ज्यादा कोई आपको देना नहीं पड़ता, एफर्ट मेहनत लगानी नहीं पड़ती। लेकिन इस छोटी सी नेकी से भी आपकी अपनी अमली जिंदगी और आपकी अपनी आखिरत के हिसाबों किताब में बहुत बड़ा फर्क मुरत्तब होता है। इसलिए किसी नेकी को मामूली मत समझो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात खवातीन की तरबियत करते हुए भी इरशाद फरमाई। आपको मालूम है इस्लामी शरीयत ने पड़ोस के हुकूक या पड़ोसी के हुकूक बताते हुए बहुत सारे आदाब हमें बताए। उन आदाब में से एक अदब यह भी है कि आज अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इदा तबख्त मरक़तन फअक्सिर माअ व तआहद जीरानक। जब आपके घर में गोश्त बने, शोरबा बने, गोश्त का सालन बने, तो तुम हो सकता है ये सोचो कि मेरे पास थोड़ा सा गोश्त है और इतना है कि मेरे घर के लोगों की जरूरत के लिए काफी हो सकता है। अल्लाह के नबी ने कहा पानी थोड़ा सा बढ़ा दो, उससे क्या होगा, आपका सालन थोड़ा सा पतला हो जाएगा, शोरबा जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन मिकदार बढ़ जाएगी। फअक्सिर माअ, थोड़ा पानी बढ़ा लो सही, लेकिन अपने पड़ोसी को दे दिया करो। जो आपके घर में अच्छा पकता है, कुछ भी आपके घर में अच्छा बनता है, अपने पड़ोस में दिया करो। हाँ, बात आइए तो ज़िम्नन जिक्र कर दूं, नए जमाने में ये सुन्नत या ये हुक्म बहुत कम लोग अमल करते हैं। फ्लैट सिस्टम जो लोगों के अंदर है, आपका इलाका भी फ्लैटों का है, एक ऐसा लगता है कि हर फ्लैट अपनी दुनिया है, बाजू वाले पड़ोसी के फ्लैट में क्या चल रहा है उससे हमें कोई सरोकार नहीं, और लोग ये पसंद करते हैं कि हमारे घर के बारे में दूसरे को पता ना चले। ठीक है, आप एक दूसरे की टोह में न लगे, लेकिन एक दूसरे को इस किस्म के अहकाम में याद रखें, इस्लामी शरीयत की इन तालीमात में याद रखें। अब आप देखें इस तफसील को अगर आप समझ रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन से मुखातब होते हुए फरमाया
ला तहक़िरन्न जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसी नशात। अब ये तोहफा देने का जो मसला है, घर के पकवान या सालन में से कुछ पड़ोसन को देने का मसला है, अल्लाह के नबी ने कहा एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन को ये तोहफा देने में झिझक महसूस ना करे, गर्चे वो तोहफे में जानवर का खुर ही दे रही है। खुर समझते हैं आप, जानवर का पांव और पैर का बिल्कुल निचला हिस्सा, पाया जो होता है पाए का बिल्कुल निचला हिस्सा, आपको मालूम है ऊपर वाले हिस्से में फिर भी कुछ हड्डी पर गोश्त और उस पर चमड़ा जमा होता है। खुर ऐसा हिस्सा होता है जिसमें सिर्फ चमड़ी लगी रहती है, गोश्त नाम बराए नाम, या कई बार गोश्त नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा इतनी मामूली चीज भी दे सकती हो तो अपनी पड़ोसन को दो, लेकिन इसको हकीर मत समझो, इतनी नेकी करने को भी छोटा मत समझो। तो इस्लामी शरीयत के इस हुक्म को याद रखने की जरूरत है कि बड़ी बड़ी नेकियां करते हुए कई बार आदमी के अंदर गैर शूरी तौर पर नेकी का गुरूर आता है, गैर शूरी तौर पर नेकी का एहसास आदमी के अंदर पैदा हो जाता है। वो जो आप समझते हैं ना, लोग आमतौर पर मालदारों की अकड़ को याद रखते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए नेक लोगों का भी अपना ये गुरूर होता है, नेकियों का भी अपना ये गुरूर होता है। और मैं बताऊं, मालदार को अपने माल का गुरूर उतना धोखे में नहीं रखता जितना नेक आदमी को नेकी का गुरूर धोखे में रखता है। बड़े बड़े मालदार को अगर आप अकड़ा हुआ देखते हैं, अगर अल्लाह माफ फरमाए हम और आपको अगर हम अपने नफ्सों का जायजा ले लेना, बड़ी बड़ी नेकियां करने के बाद हम और आप गुरूर नफ्स का शिकार रहते हैं। इस गुरूर नफ्स या बड़ी नेकी करने के जो धोखे हैं, उनमें से एक ये भी है कि अब छोटी नेकी को हम अपने लिए छोटा समझने लगते, नहीं मैं तो बहुत बड़े बड़े काम करता हूं, ये छोटी मोटी नेकियां मेरे मेयार से बहुत छोटी है। नहीं अल्लाह के बंदो, ये दीनदारी नहीं, ये इस्लाम नहीं, इस्लामी शरीयत की तरबियत हमारी और आपकी ऐसी नहीं हुई है कि किसी नेकी को मामूली समझे हम और आप। क्या पता रोज़े क़ियामत क्या होने वाला है, रोज़े क़ियामत अमाल तोले जाएंगे ना, तो क्या होगा, नेकियों का पलड़ा भारी पड़ेगा जन्नत, और बुराइयों का पलड़ा भारी पड़ गया जहन्नम के मुस्तहिक। और पलड़ा भारी पड़ने के लिए एक छोटी सी नेकी भी काफी है, या बुराइयों का पलड़ा भारी पड़ जाने के लिए एक छोटी सी नेकी की कमी भी काफी है। इसलिए जिंदगी में कभी ऐसी बेवकूफी हम और आपको नहीं करनी चाहिए कि किसी नेकी को हम मामूली समझें, ये गलती कभी हम और आपको नहीं करनी चाहिए। और एक बड़ी अहम बात और आपके सामने जिक्र करके बात को समेट लेता हूं, ये बड़ी अहम बात है, इसको याद रखिएगा। वो क्या है पता है आपको? देखो, कई बार नेकी को बड़ी नेकी के मुकाबले में छोटा करार दिया गया इस्लामी शरीयत में। बड़ी नेकी कहा गया है अय्युल आमाल अफदल, तो अमाल को दूसरे अमाल के मुकाबले में छोटा कहा गया है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि नेकी बज़ाहिर छोटी हो, लेकिन नीयत, आदमी का इखलास, आदमी की बंदगी का जो जज्बा है, जिस कदर यकसुई के साथ अल्लाह की बंदगी के जज्बे में डूब कर नेकी करता है, बसा औकात नेकी बड़ी नेकी के मुकाबले में छोटी है, लेकिन करने वाले बंदे की नीयत, उसके जज्बे, उसके इरादे, उसकी बंदगी के शऊर की पुख्तगी का नतीजा ये होता है, ये छोटी नेकी भी इस्लामी शरीयत की नजर में अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी नेकी बन जाती है। शैतान हमें कहां कहां से गाफिल करता है, जरा सा अंदाजा लगाएं। कितनी ऐसी नेकियां होंगी जो हम तक चल के आती हैं, बहुत नेकियां, रास्ता चलते हुए तकलीफ दे चीज पड़ी हुआ है, एक पैर से भी मार देंगे चला जाएगा, हाथ से उठा के पत्थर रख देंगे, नहीं करते हम लोग। घर के सामने हमारे गड्ढा पड़ गया है, कुछ नहीं जाता कि घर से नीचे उतर के रख दो, लेकिन आदमी कसरे शान समझता है। इमाततुल अज़ा अन तरीक़ सदका, सब जानते, कमल कोई नहीं करता है। वो नेकियां जिनको छोटा समझा जाता है, गलत फहमी का शिकार बंदा ये समझता है कि नेकी, छोटी नेकी करूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नहीं अल्लाह के बंदो, शैतान के इस मकर से बाहर निकले। कोई अमल हमारे लिए छोटा नहीं होता, इसलिए कि हर अमल की हमें जरूरत है, हर अमल का हमें अजर मिलने वाला है। और मैंने कहा ना कि ये जो छोटे छोटे अमाल हैं, कई बार छोटी नेकी पे अल्लाह बहुत बड़ा अजर अता फरमाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैहि एक बात कहा करते थे, कहते थे, रुब्ब अमलिन सगीरिन तुअज़्ज़िमुहु निय्या व रुब्ब अमलिन कबीरिन तुसग़्गिरुहु निय्या। कहते थे कितने ही छोटे अमाल हैं कि नीयत उनको बहुत बड़ा बना देती है,
اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ عمل تو بہت بڑا کر رہا ہے، نیکی بہت بڑی کر رہا ہے، لیکن نیت اسے بہت چھوٹا عمل بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ یہ نیت کی ماں کا معاملہ بہت بڑا ہے۔ اور اسی لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ النیت تجارت العلماء، کہتے ہیں نیت جو ہے وہ علماء کی تجارت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہا عام لوگوں کو ان باریکیوں کی طرف نہ علم ہوتا ہے نہ توجہ ہوتی ہے، لیکن علم کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ علم والا کیا کرتا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے چھوٹے عمل سے بھی بہت بڑا اجر کما لیتا ہے۔ یہی فقہ، اسی کو میں کہہ رہا ہوں فقہ الحسنات، نیکی کرنے کی بھی اپنی ایک فقہ ہے، عمل کرنے کی بھی اپنی ایک فقہ ہے، عمل کرنے کا بھی ایک طریقہ اسلامی شریعت میں سکھایا گیا، اور ان میں سے یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اور آپ کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، بلکہ چھوٹی نیکی کو بھی اگر ہم واقعی معنوں میں بندگی کے جذبے میں ڈوب کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں، کیا پتہ یہی چھوٹی نیکی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ مجموع الفتاوی میں 3 واقعات کا ذکر کیا ہے، 3 الگ الگ واقعات کا جو احادیث میں آئے، صحیح سند کے ساتھ ثابت واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث البطاقہ کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث البطاقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا، اور بلانے کے بعد اس کے گناہوں کا رجسٹر اس کے سامنے کھول کر رکھے گا، گناہوں سے بھرے 99 رجسٹر 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ اتنا لمبا رجسٹر ہوگا، جہاں پہنچ کر انسان کی نگاہ ختم ہوتی اتنا لمبا رجسٹر، اور سب کے سب آدمی کے گناہوں سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو بلا کر پوچھے گا اتنکر شیئا من ھذا، یہ جتنے گناہ تیرے اعمال نامے میں لکھے گئے، اس رجسٹر میں لکھے گئے، ان میں سے کوئی ایسا بھی گناہ ہے کہ تو نے کیا نہ ہو، لکھ دیا گیا ہو؟ تم ان میں سے کسی کا انکار کرو گے؟ بندہ دیکھے گا سب وہی ہے جو میں نے کیا ہے، تو اعتراف کرے گا لا یا رب، یہ سب میرے اپنے گناہ ہیں، مانتا ہوں مجھ سے ہوئی۔ اللہ پوچھے گا کیا کوئی نیکی بھی ہے؟ اتنے گناہ تو کیا ہے، کیا کوئی نیکی بھی تو نے کی ہے؟ بندہ وہ جو خوف اور دہشت کا ماحول ہوگا نا، اس میں اسے گناہوں کی یہ کثرت دیکھنے کے بعد اپنی کوئی نیکی یاد نہیں آ جائے گی، وہ کہے گا نہیں میرے رب۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، ہمارے پاس ظلم نہیں ہوتا، تیری ایک نیکی ہے، میں آج اس نیکی کو دوں گا اس کا بدلہ تمہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر ایک بطاقہ، ایک کارڈ لایا جائے گا، یعنی 99 رجسٹر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ لمبا، اور ان کے مقابلے میں ایک کارڈ لایا جائے گا، اور وہ کارڈ لا کر دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کلمہ لکھا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک رقعہ کہیے، ایک یوں سمجھیے کارڈ کہیے، یہ 99 رجسٹر پر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ حدیث اللہ کے نبی نے سنائی، ایک حدیث۔ دوسری حدیث شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون گزر رہی تھی، بدکار عورت تھی، کتے کو پیاسا دیکھا، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تیسری حدیث بھی شیخ الاسلام نے تیمیہ نے ذکر کی، وہ تیسری حدیث کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا کہ وہ آدمی جا رہا تھا تو دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی نیچے جھکی ہوئی ہے، تو اس نے سوچا راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ٹکراتے رہے گی، اس نے کاٹ دیا کہ یہ ٹہنی جو راستے پہ جھکی ہوئی ہے لوگوں کو تکلیف نہ دے، اس نے کاٹ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ایک چھوٹی سی نیکی بھی قدردانی کی، قدر افزائی کی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی مغفرت کر دی۔ یہ تینوں حدیثیں ذکر کرنے کے بعد شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک نیکی بظاہر دوسری نیکیوں کے مقابلے میں چھوٹی نظر آتی ہے،
लेकिन ये नेकी करने वाले जो लोग थे, उन लोगों के इस नेकी के करने के मौके पर दिलों की जो कैफियत थी, इखलास के जिस दर्जे पे उतर कर उन्होंने काम किया, बंदगी के जिस जज्बे में डूब कर उन्होंने काम किया, ये नेकियां अपनी जगह पे छोटी होते हुए भी अल्लाह के पास इतनी बड़ी नेकियां बन गई कि अल्लाह ताला ने इनको उनकी जिंदगी भर के गुनाहों का कफारा अल्लाह ताला ने बना दिया। ये असल में फिक्र है जिसको कहते हैं। समझना चाहिए कि हम और आप जो नेकियां करते हैं ना, इन नेकियों में अल्लाह ताला ने बड़ी तासीर रखी। वो छोटी होगी लेकिन हमारी जिंदगी की जरूरत है, हमारी आखिरत की जरूरत है, हर नेकी हमारी और आपकी जरूरत है। इसका ख्याल रखें। और आखिरी एक बात और जिक्र करके बात को खत्म कर लो। जब हम छोटी छोटी नेकियों का जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को भी याद रखें कि गुनाहों में से भी बाज गुनाह हैं जो कबाइर हैं, बड़े बड़े गुनाह, हम उनसे बचते हैं। अल्लाह के नबी ने हुक्म भी दिया, इज्तनिबू सबअल मूबिकात, 7 हलाक करने वाले गुनाहों से बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा, साहब अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, क्या मैं तुमको न बताऊं कि बड़े बड़े गुनाहों में से भी बड़े बड़े गुनाह कौन से हैं? अल्लाह के नबी ने ये सब कुछ सिखाया। लेकिन अल्लाह के नबी की ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए, मुझे याद रखनी चाहिए कि इय्याकुम व मुहक्करातिज़्ज़ुनूब, अल्लाह के बंदो, जिन गुनाहों को हकीर और मामूली समझा जाता है उनसे भी बचने की फिक्र किया करो। ये भी यहां गफलत का दरवाजा। कई बार आदमी क्या करता है, नेकियां बड़ी बड़ी करता है तो फिर आदमी छोटे गुनाहों को मामूली समझ लेता है। क्यों? उसने पढ़ा है इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यात, नेकियां गुनाहों को मिटा देती। ये सच है अपनी जगह पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेकियां करना छोटे गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है। नेकियां हम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी नेकियां कर रहे हैं तो छोटे गुनाह करने की इजाजत और रुख्सत नहीं है। ये हक है, बजा है कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, अल्लाह ने कहा है कि नेकियां गुनाहों को मिटाती हैं। ये कुरान में अल्लाह ताला का फरमान। लेकिन ये बात समझने की है कि छोटी नेकी, छोटे से छोटे गुनाह को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अल्लाह के नबी ने मुस्नद अहमद की रिवायत में मिसाल दी, मिसाल देकर अल्लाह के नबी ने कहा कि इन छोटे गुनाहों को मामूली नहीं समझना चाहिए। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा, एक काफिले वाले किसी जगह पे नीचे उतरते हैं, हर आदमी काफिले का जाता है, जंगल से एक एक लकड़ी उठा के लाता है, एक एक काड़ी उठा के लाता है, एक एक लकड़ी उठा के लाता है, लेकिन सबकी लाई हुई लकड़ियां, काड़ियां इकट्ठा करते हैं तो कबीले वाले इतनी बड़ी आग जला, माफ कीजिए, काफिले वाले इतनी बड़ी आग जला लेते हैं कि पूरे काफिले की जरूरतों को के लिए काफी होती है। ऐसे ही जिन गुनाहों को छोटा समझते हैं ना, ये छोटे छोटे जब जमा हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कई बार एक आदमी की बर्बादी के लिए काफी हो सकते हैं। आदमी को सोचना चाहिए। आप एक बात देखिए, अल्लाह ताला ने नेकी और बुराई के सिलसिले में एक बात यह भी बताई है, नेकी अगली नेकी का दरवाजा होती है और बुराई अगली बुराई का दरवाजा बनती है। छोटी नेकी को छोटी समझकर छोड़ देंगे, क्या पता ये छोटी नेकी किसी बड़ी नेकी का दरवाजा बनने वाली थी, और छोटे गुनाह को छोटा गुनाह समझकर कर लेंगे, क्या पता ये छोटा गुनाह किसी बड़े गुनाह का दरवाजा बना दिया जाए मेरे और आपके लिए। इसीलिए नेकी करने में जो इस्लामी शरीयत की ये जो बारीक बारीक तालीमात हैं, इनको हमें याद रखना चाहिए और इनकी रोशनी में अपनी जिंदगी में अमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। आज की इस मुलाकात में ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना, सिर्फ यही कि अमल की खेती है ये दुनिया दारुल अमल है, हम सबको अमल करना है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। लेकिन अब नेकी करने में भी ये जो इस्लामी शरीयत की छोटी छोटी बारीकियां, ये जो जुजियात, ये जो तफसीलात, ये जो इस्लामी शरीयत की हिदायत आती हैं, इन सबको रफ्ता रफ्ता सीख कर अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। कुरान की आयत से मैंने गुफ्तगू का आगाज किया था। अल्लाह ने कहा, उलाइका युसारिऊना फिल खैराति, अल्लाह ने कहा ईमान वालों की यह निशानी है कि वो नेकियों में तेजी दिखाते हैं, बड़ी नेकियों में, छोटी नेकियों में। तफसील अल्लाह ने नहीं की, दोनों में। फिल खैरात, हर किस्म की नेकी में वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ने वाले होते, वहुम लहा साबिकून, और उसमें सबकत करके आगे बढ़कर मौके को इख्तियार करने वाले होते हैं। हम बड़े नादान हैं, कई बार नेकी हमारे दरवाजे तक आती है लेकिन हम वहां से रुख फेर कर चले जाते हैं। ये गलती हमें अपनी जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करते हुए ये बात अल्लाह ताला से बार बार अल्लाह ताला से मांगता हूं, तलब करता हूं कि अल्लाह ताला हम और आपको दीन की सही समझ
समझ दे, इल्म नाफे अता फरमाए, साथ में अल्लाह ताला हुस्न अमल की तौफीक से हम सबको माला माल फरमाए, जिंदगी नेकी से आबाद रखने की अल्लाह हम और आपको तौफीक अता फरमाए, और जब हम और आप इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह हमसे राजी हो और अल्लाह ताला हम और आपको उस मुकाम पे पहुंचाए जो हमारे और आपके लिए बेहतर से बेहतर जो मुकाम हो सकता है, आला जन्नतों में अल्लाह हमारा और आपका ठिकाना लिख दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।